Hello students, today I am teaching you something important in coordinate geometry. We know how to prove the given points are collinear points. Suppose 3 points are given A, B, C, and if the question is are the given points are collinear points, then we used to do this one by distance formula. हमने क्या किया था, distance formula use किया था. For A, B, C we found first AB length, then BC, then AC. राइट तो हमने डिस्टेंस फार्मूला से हमने प्रूव किया था वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. राइट सपोज दे आर कोलिनियर तो हमारे पास रिजल्ट ऐसे कुछ आया था, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी. इफ दिस कंडीशन होल्ड्स then we used to say that the given points are collinear points. But today I will be teaching you something different by using triangle formula. In coordinate geometry we have area of triangle formula. See, before going to that, let me teach something important. See, whenever we have 3 points, then those 3 points may be either in one line, that is we call these points as collinear points, or they may be like this. So when these points are scattered, 2 may be collinear. 2 ऐसे एक लाइन में हो सकता है. अगर सपोज थर्ड वन ऐसे बाहर आ गया, then we say that these points are non-collinear points. Whenever we have non-collinear and 3 points, then we can draw a triangle here. देखो यहाँ पे ऐसे एक ट्रायंगल बन जाएगा, या यहाँ पे भी ऐसे ट्रायंगल बनेगा. But if the points, given points are collinear, then triangle is not possible. We get only a line. Collinear का meaning ही है if the points lie on a single line, then we say that they are collinear. But suppose the points are non-collinear, तो क्या बनेगा वहाँ पे? कैसे भी तुम लोग scattered points डाल दो. 2 may be in a line, right? Like this. देखो यहाँ पे line में ही. When we join these 3 points, non-collinear points, surely we get a triangle. Triangle बन सकता है, right? Then by using area of triangle, when the points are non-collinear, तो यहाँ पे ट्रायंगल बन गया, और जब भी ट्रायंगल बनेगा तो उसका एरिया कुछ ना कुछ बनेगा ही. सपोज द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो एरिया इसका क्या बनेगा? एरिया विल बी 0. इफ दे आर नॉन कोलिनियर, देन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल कम समथिंग. कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, इट मे बी डेसिमल, इट मे बी फुल नंबर, बट area of triangle आएगा, right? So using this idea, today I am going to teach you how to prove the given points are collinear points. Now what is the area of triangle in coordinate geometry? What is area of triangle? Area of triangle is, as we know, स्टूडेंट्स आई थिंक बीच में ब्लर हो गया था स्क्रीन. ओके, नाउ आई थिंक इट्स क्लियर. नाउ फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी हैव वन फॉर्मूला. whenever we have triangle, when 3 points are there, तो 3 points हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x1 y1 and x2 y2 and x3 y3. So 3 points are given, we have to prove that whether they are collinear or not. So for that we are using area of triangle. Area of triangle in coordinate geometry is like this: 1/2 bracket x1 in the bracket y2 minus y3 plus x2 in the bracket y3 minus y1 plus x3 in the bracket y1 minus y2. See, when I say this as the area of triangle, तो तुम लोगों को लगेगा बाप रे ये कैसा फॉर्मूला है, कैसे याद रहेगा? बट दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट फॉर्मूला आई कैन से. बस हमें साइकिल याद करना है. नाउ आई विल टेल यू हाउ वी आर राइटिंग दिस. इसको बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली तुम लोगों को आ जाएगा. Okay, one more thing I want to tell you. Whenever we are finding area of triangle, it comes always positive. Area हमेशा positive होना चाहिए. But sometimes we get negative here. Sometimes area comes as a negative. तो negative को हटाने के लिए हम यहाँ पे एक symbol लेते हैं
two standing line. Two standing line means it is called as modulus function or we say this as a modulus. तो modulus के अंदर हम कोई भी नंबर लिखेंगे ना वो हमेशा पॉजिटिव बन के बाहर आएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग -2 देन इट विल कम एज 2. क्यों हम ये मॉडुलस यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल ना हमेशा पॉजिटिव होता है. यू कैन टेक दिस आइडिया और छोड़ोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. लेट मी राइट दिस मॉडुलस. So area of triangle 1/2. Instead of writing bracket you take this as modulus. अब कैसे लिखना है देखो. हाँ, ये लिखना बहुत ईजी है. हमें पता है x और ब्रैकेट्स, x और ब्रैकेट्स, x और ब्रैकेट्स दैट टू y ब्रैकेट्स. तो तुम लोग क्या करो, यहाँ पे ऐसे 3 ब्रैकेट डाल दो थोड़ा स्पेस छोड़ के, राइट. फिर x लिखो y माइनस वाई, फिर x y माइनस वाई, देन x y माइनस वाई. अब हमें साइकिल चलाना है. कैसे चलाना है देखो, यहाँ पे 1 लिखा, 1 2 3, क्योंकि हमारे पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो हमें 1 2 3 का साइकिल चलाना है. ओके, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, देन कम्स 2 एंड 3, तो ये 2 एंड 3. फिर यहाँ पे मैंने x1 लिखा है, तो नेक्स्ट में 2 से मुझे स्टार्ट करना है. तो 2 से मैं स्टार्ट करूँगी तो 2 3 1 लाइक दिस हमारा साइकिल चलेगा. 2 3 देन 1, सो 2 3 1. फिर यहाँ पे मैंने x2 लिखा, फिर x3 मुझे लिखना है. x3 लिखा, फिर 3 से स्टार्ट करो. अभी 3 1 2, ऐसे पीछे मत आना. 3 देन 1 देन 2, ऐसे 3 1 एंड 2. So 3 1 and 2. So easy it is, right? तो हमें क्या करना है, x और y के ब्रैकेट्स लिख दो. फिर 1 लिखा तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3. फिर यहाँ पे मैंने 1 लिखा है तो इधर 2 लिखो, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, क्योंकि हमारे पास 2 3 1 नंबर्स है. अब यहाँ पे 2 लिख दिया तो इधर 3 लिखो. देन व्हाट वी गेट, 3 के बाद कौन सा आएगा साइकिल में, फिर से हमारा 1 आएगा, देन 2. So one more time I will write area of triangle is 1/2. Modulus you can write or you can take bracket. तो x y minus y plus x y minus y plus x y minus y. Modulus complete करो. फिर लिखो फर्स्ट 1, चाहे तो इधर 2 भी लिख देना, इधर 3 भी लिख देना. x का देखो x1 x2 x3 1 2 3 लिख दो. अब ये लिखेंगे हम 1 देन 2 देन 3. फिर इधर 2 आ गया, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद हमारा 1, 3 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2. देखो सो इजी इट इज़. ज़्यादा टेंशन मत लो. व्हेन वी अप्लाई दिस वन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, तुम लोग खुद बोलोगे मैम कितना इजी है. ओके, नाउ द गिवन क्वेश्चन इज लाइक दिस. प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर. ऐसे भी आ सकता है, नहीं तो यही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग फॉर्मेट. आर द गिवन पॉइंट्स, दीज 3 पॉइंट्स ओके आर कोलिनियर, मतलब वो हमें ही पूछ रहे हैं कि वो कोलिनियर है क्या. तो हमें बताना है येस और नो. दे मे बी कोलिनियर, दे मे नॉट बी. और यहाँ पे क्या है, प्रूव है, मतलब दैट मीन्स दे आर कोलिनियर. अभी मैंने कहा था whenever the points are collinear then area becomes 0. whenever this becomes collinear तो ये 0 बनेगा, राइट. तो अभी हम देखेंगे 0 बन रहा है या नहीं बन रहा है. अगर 0 बन गया तो पॉइंट्स कोलिनियर है. 0 नहीं बना एरिया ऑफ ट्रायंगल, कुछ वैल्यू आ गया, देन दे आर नॉट कोलिनियर. बस सिंपल आइडिया लगाना है. तो मैं पहले सब पॉइंट्स लिख देती हूँ. यहाँ पे 8 1 है, तो 8 1 विच इज़ नथिंग बट x1 y1. नेक्स्ट 3 minus 4 that is x2 y2. then 2 minus 5 point and I am writing x1 and y1, that's it. okay, so मैंने मेंशन कर दिया x1 y1 this like this. now you write area of triangle is equal to,
अब फॉर्मूला तो मैंने बताया है 1/2 एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। पहले इतना लिख दो, फिर नंबरिंग डालते जाना, A1 और A2 और A3। A1 आया, देन 2 3, 2 है 3 1, 3 है 1 2। अब जस्ट वैल्यू पुट कर देना है। फॉर्मूला बहुत इजी है, याद रखना, राइट। कोई बाहर की ज़रूरत नहीं, खाली हमें साइकिल याद रखना है 1 2 3 1 2 3 का। अब गो ऑन पुटिंग द वैल्यूज हियर। 1/2 x1 इज नथिंग बट 8 लिखा, देन y2 माइनस y3, y2 इज -4 एंड y3 -y3 है, हाँ इधर -y3 ऑलरेडी ये भी माइनस है, तो ये क्या बनेगा प्लस। ज़्यादा स्टेप्स को एक्सटेंड मत करो, जो छोटे मोटे सिंप्लीफिकेशन होता है उसको कर दिया करो। x2 दैट इज 3, देन y3 माइनस y1, y3 इज -5 एंड y1 इज 1। ये बाय प्रैक्टिस बहुत इजी हो जाएगा तुम लोगों को। प्लस x3 इज 2, y1 माइनस y2, y1 इज 1 माइनस 2, बट ऑलरेडी माइनस y2 है माइनस y2, बट ऑलरेडी माइनस साइन है, तो एक बनेगा 4, राइट। ये 1 + 4 है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। 1/2 8, देखो 5 - 4 1, तो 8 × 1 8 हो गया है, राइट। अब यहाँ पे देखो -5 - 1 इज -6, -6 × 3 इज -18। अब ये 4 + 1 5, 5 2 = 10, दिस इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे देखो 10 + 8 18, 18 - 18 0, तो इंटू 0 हो गया ये, राइट। तो 1/2 इंटू 0 इज 0। तो क्या आया इधर, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया। सो वेन एवर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब पॉइंट्स ऐसा आता है ना, ये पॉइंट है हमारे, अगर ये तीनों कोलिनियर है तो ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा 0, यस, राइट। तो व्हाट आई कैन से, यस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पे क्या था, प्रूव दैट था, तो प्रूव कर दिया हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया। और यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म, आर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो हमें यहाँ पे आंसर लिखना है, सिंस एरिया इज 0 द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो दिस इम्प्लाइज गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड दिस मेथड। स्टार्टिंग लगता है थोड़ा सा मतलब ट्विस्टी है, इससे अच्छा डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला 3 टाइम्स तुम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, देन यू कैन से कि हाँ ये है या नहीं। बट यहाँ पे क्या होता है, फार्मूला लिखना भी इजी है, जस्ट वैल्यू पुट करके इमीडिएटली 2 to 3 स्टेप्स में आंसर आ जाता है। उसमें तुम लोगों का 1-1.5 पेज का आंसर जाएगा, बट यहाँ पे 2 to 3 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा, एंड फार्मूला इज ऑल्सो वेरी इजी। स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन आई हैव टेकन, आर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। फिर से वही है, आर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो मैंने कहा था वेन एवर द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल बिकम्स 0। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल कोई भी 0 छोड़ के कोई भी नंबर आ रहा है देन द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। तो हम पहले एरिया फार्मूला से हम फाइंड कर देंगे। सो दिस वन x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। मैंने यहाँ पे नेमिंग कर लिया है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब तो शायद तुम लोगों को इजी हो गया होगा फॉर्मूला लिखना। ओके, लेट मी राइट द फॉर्मूला। 1/2, तो मॉडल्स के बदले ऐसे ब्रैकेट भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। x y माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, एक्स वाई माइनस वाई।
देन 1 2 3 1, यहाँ पे 2 डाल दो और यहाँ पे x का किस्सा ख़त्म कर दो पहले, राइट। देन y के पीछे जाएंगे हम 1 2 3। अब इधर 2 है तो क्या आएगा 3 1। मेरे साथ तुम लोग भी बोल दिया करो, 3 है तो 1 and 2। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला लिखना इतना इजी है। अब फटाफट वैल्यू पुट कर दो और फाइंड कर देना। दिस इक्वल टू, यू राइट दिस 1/2। अब x1 इज 3, y2 minus y3, y2 is 4, y3 is this, so 4 minus 3 plus x2 is 6, y3 minus y1, y3 is 3, y1 is 0, तो 3 minus 0। बस थोड़ा वैल्यूज़ देख के पुट करना। x3 इज -1, तो -1 एक्चुअली इधर प्लस छोड़ के तुम लोग डायरेक्टली -1 लिखोगे तो भी चलेगा। देन y1 minus y2, y1 minus y2, तो y1 0 है और y2 4। तो हमारा वैल्यू पुट करने का टास्क ख़त्म हो गया। अब फटाफट सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। 1/2, 4 minus 3 1, 1 into 3 3, तो ये 3 आएगा। देखो 4 minus 3 1 है, 1 into 3 3। अब ये 3 minus 0 is 3, 6 3 is 18। यहाँ पे देखो 0 minus 4 विल बी -4, हाँ ये ब्रैकेट -4 बनेगा। -4 इंटू -1 इज +4। दिस इक्वल टू 1/2। अब एडिशन क्या आता है देखो, 18 + 4 22, 22 + 3 25। सो आई एम गेटिंग दिस एज 25/2। अब इसको फ्रैक्शन में या डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल, तुम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, मतलब और सिंपल फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हो। कैसे भी करो आंसर 0 तो नहीं आने वाला है, राइट। सो वी आर गेटिंग वन वैल्यू, 25/2 इज़ नथिंग बट 12.5। तो एक वैल्यू आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैंने कहा था एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आया तो ही वो पॉइंट्स कोलिनियर है, लेकिन यहाँ तो नंबर आ गया। इट मे बी इन फ्रैक्शन फॉर्म बट नो प्रॉब्लम, लेकिन 0 तो नहीं आया। सो यू राइट हियर नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं आया दैट मीन्स व्हाट, वहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। इधर देखो, इधर कुछ तो नंबर बना, तो उधर वो तीनों पॉइंट मिला के कुछ तो एरिया बना रहे हैं इधर, राइट। सो व्हाट आई कैन से फॉर दिस, एरिया 0 नहीं आया तो हमें लिखना है द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। सो दिस इम्प्लाइज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो ही एरिया आता है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया 0 हो जाएगा, जैसे मैंने अभी पीछे सिखाया था तुम लोगों को। ये देखो, अगर एरिया 0 आता है तो पॉइंट्स कोलिनियर बन जाएगा, और अगर एरिया 0 नहीं आया तो पॉइंट नॉन कोलिनियर बन गए। सो दिस इज ऑल अबाउट कोलिनियर पॉइंट्स। होप स्टूडेंट you understood. Please try to practice such type of questions from question bank or question paper. You can use that method also by using distance formula, or you can use this method also. So keep practicing, students. Thank you.